This trouble. conference will now be recorded. We should be doing everything side by side. Right. तो ये जो कुछ भी हम करते हैं तो माँ सरस्वती इज सिंबॉलिकल नॉलेज के बारे में मानी जाती है ना। तो इनकी कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना। ऑनेस्टी इज द ओनली थिंग शी एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। ऑनेस्टी। तो जब होमवर्क मिलता है तो उसको ईमानदारी से करें। जब हम कहते हैं सोचिए तो उसको ईमानदारी से करिए। बिकॉज अगर आप कोई स्कीम लगाएंगे तो बेटा रिजल्ट भी स्कीम्ड ही होगा, है ना। चलिए, और तुली कैसा है? तो डू यू रिमेम्बर Tanveer, in the last class we were doing certain phenomena which are going to prove which character? The particle character. The black body radiation and photoelectric effect were explained, were discussed theoretically. Few more phenomena which we will not be discussing as a chemistry field. Reflection, diffraction can be explained by assuming light to be wave in nature. Remember, we are not denying that the light can be wave in nature. We are not denying that light can be particle in character. We are saying that light can be both in character. It is going to have a double character, particle as well as wave. आज के लेक्चर के बाद आपका ये क्लैरिटी और धीरे धीरे करके आनी शुरू हो जाएगी. So it is going to have a dual character. The phenomena which explained that energy is directly proportional to frequency, basically that proved that light is going to be particle in nature. Photoelectric effect: on heating, the color changes from red to orange to yellow to white. That proved that the light is going to be particle in nature because the frequency is increasing. Black body radiation could be explained by using Max Planck's quantum theory, that is, energy is directly proportional to this. The photoelectric effect also said similar type of thing. There were three observations in photoelectric effect. The first was kinetic energy of photoelectron was found to be independent of intensity. The kinetic energy did not increase with intensity. इसका मतलब the Max Planck's quantum theory ही इसको explain कर पाएगी. The electromagnetic wave theory could not explain it because according to that energy is proportional to intensity. यहाँ पे energy is independent पाई जा रही है. The kinetic energy of photoelectron was found to be directly proportional to frequency of incident light only after nu naught. And Einstein explained this all thing on the basis of Einstein equation. What did it use? The incident energy is equal to the certain amount of energy जो कि आपको जरूरी देनी ही पड़ेगी for removal of electron plus the kinetic energy. The kinetic energy is going to be जितनी आपने दी थी minus जितनी उसको निकालने में लगी. Remember, the kinetic energy, the dimensions will be joules. और अगर जरूरत पड़ी तो हम आज के दिन में EV, what is EV? The electron volt भी यूज करने वाले हैं. 1 electron volt is equal to 1.602 into minus 19 joules. We will be playing with that. H key value, we are assuming that you people remember 6.625 into minus 34 joules. That is the relationship we will be using today. The third observation was found to be that number of photoelectrons, that is equal to photocurrent. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्या बढ़ने वाला है? The photocurrent बढ़ने वाला है, is directly proportional to intensity of IR. Remember, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इसके नीचे तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकती है. So that was the theory part of photoelectric effect. The agenda is to understand it in a different way and solve the problems based upon that. Right जी? चलिए मिलके करते हैं, कोई जल्दी नहीं है. Let us do together. So that's a question based upon photoelectric effect.
The photon of wavelength this much strikes on metal surface. The work function is this much. देवांशी, the work function means गुड़िया उसने आपको क्या दे रखी है? Ionization energy. Ionization energy is also known as work function. Do you remember it? Work function, it is equal to 2.13 electron volt. And the wavelength he is giving you is 4 into -7 meter. He says use this data, एक एक करके करते हैं, the energy of the photon. The energy of the photon. Who will solve with me? Jasleen Kaur, will you join? Energy is going to be given by गुड़िया h c by lambda. मैंने h nu नहीं लिखा. So what is h? It is going to be 6.625. उत्कर्ष join कीजिए. -34 joule second उत्कर्ष. Yes. 3 into 10 raised to power 8 meter per second. वो आपको बेटे ये चीजें नहीं बताएगा. Divided by सन क्या होगा? Wavelength. What is that? 4 into 7. उत्कर्ष एक बार चेक कर लिया कर. आपको याद है ना जूल के अंदर किलोग्राम मीटर सेकंड आता है. तो सारे के सारे सेम डायमेंशन में चलेंगे. तो बेटे ये जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल्स में. तो जूल. और उसने हमें जो एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्यों ना हम इसको जूल्स में ही कन्वर्ट, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ले आए. तो ऊपर उसने कहा भी है, बट यू शुड आल्सो रिमेंबर 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है उत्कर्ष? पढ़ के बताइए. 1.602 into 10 to power minus 19 joules. ऐसे करने से जूल कट गया बेटा. आपका आंसर किस में Yes. आएगा? इट इज 1 जूल इज इक्वल टू, मैंने गड़बड़ नहीं किया? गड़बड़ किया ना? 1.602 नीचे आना. उल्टा, हाँ उल्टा लिखना था अनन्या, मैंने उल्टा कर दिया बेटा. 1.602 उत्कर्ष माइनस 19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये लिखना था ना बेटे. तो ऐसे जूल कटेगा. प्लीज यूज योर कैलकुलेटर, गिव मी द आंसर. यूज योर कैलकुलेटर. धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी ग्रास्पिंग आएगी आपको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी, बट अभी के लिए प्लीज यूज कैलकुलेटर, otherwise you people will lose interest. Yes, समोदनी दीदी कर रहा है. 3.10159. 3.10159. ओके, कोई आंसर और आ लेने दे बेटे, उससे ना कोरिलेट हो जाता है. यही है. 3.10 है ना? यस सर. 016. ओके, एक मिनट देख लेते हैं, आंसर मैंने दिए भी हुए हैं. 3.10 बढ़िया आंसर है बेटे. 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डेसिमल के 2 प्लेस तक जाना बिल्कुल सही होगा, उससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है. सो एवरीबॉडी क्लियर? वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट? एनर्जी ऑफ द फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज ही हैज गिवन कि मुझे आंसर किस में चाहिए अनन्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए. राइट सर? Let's go for the second part. The second part. Here, the kinetic energy of the emission. अनुवंश, अनुवंश आपका नाम ना ऊपर आता है. ABCD की सीक्वेंस में मेरे पास नाम आते हैं ना, so that is why जिनका नाम A से होता है वो नॉर्मली में उनका नाम निकल जाता है बेटे. इसको मिलके करते हैं अनुवंश सेकंड पार्ट को, और उत्कर्ष का नाम सबसे लास्ट में आता है. तो यस अनुवंश, व्हाट इज द रिलेशनशिप? H nu is equal to H nu naught plus kinetic energy दोस्त. Yes, sir. So बेटे kinetic energy निकालनी है तो समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? Yes, sir. आपने कितनी एनर्जी उसके ऊपर फेंकी थी? याद आ गया ना? आपने वेवलेंथ कितनी लगाई? 4 into 10 raised to power -7, और आपने कैलकुलेट कर ली थी एनर्जी 3.10. और बेटे उसकी वर्क फंक्शन कितना है? 2.13. सो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आई है? 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? राइट, पक्का चल सकता हूं आगे?
h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy. अगर suppose इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ा जूल में, तो अनुवंश तो क्या करेंगे? आपका आंसर बेटे बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ गया है, तो यू कैन राइट Sir, into this. 2. Yes, 1 electron volt is 1.602 into minus 19 joule. ये भी आंसर दे दीजिए। कैलकुलेट करके आंसर दे दीजिए क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। तो यस 1.5594. 1.554. चलो 1.56 ले लेते हैं ना, into 10 raised to power minus 19 joule. Does everyone understand? We are into the second part. Good. चल अमोदिनी अगला पार्ट करेंगे डॉली, थर्ड पार्ट करेंगे। अमोदिनी Yes, sir. नहीं समझ आया रोक लेना गुड़िया, है ना? वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। गुड़िया तेरे को पता है kinetic energy half mv square is known as kinetic energy? Yes, sir. तो अभी अभी हमने पिछले पेज के ऊपर kinetic energy कैलकुलेट की है। Yes, sir. 1.56 into 10 raised to power minus 19. गुड। माय क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल वाली कौन सी एनर्जी यूज करेगा? सर जूल वाले ज्यादा प्रेफर करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है, लॉजिक बता। Sir, उसका kg कैंसिल हो जाएगा, बाद में तो कहेगा। क्योंकि जूल्स के अंदर बिल्कुल सही बोला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 होता है और वेलोसिटी के अंदर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट गायत्री, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो कितना रखा था बच्चा वाड़ी आप? जूल। तो v square is going to be, please check my calculation, into -19। अमोदनी ये ऊपर आ गया गुड़िया? यस सर। देखो पता है इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस वक्त बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुड़िया नहीं पता तो अभी मैं लिख रहा हूं, जिस दिन जरूरत पड़े यू शुड नो दैट, -31 जूल। Got it? थैंक यू सॉरी अन्य, मेरे से गलती होगी डली। तो दिस इज 9.1 into -31। बच्चों जरा इसका आंसर दो, ये v स्क्वायर है, अब इसके बाद इसका अंडर रूट होगा। थैंक यू अन्या। We have Anya Arora and we have Ananya Prabhakar. Sir, So, the answer is 3.42 into 10 raised to the power 11. 11. चेक कर लो बेटे। सर रूट में है तो 0.585 आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाएगा। वो अभी करते हैं, अभी बढ़िया v स्क्वायर किया है। अच्छा ठीक है सर। अभी v स्क्वायर किया है, बिल्कुल ठीक कह रहा था। अगर वेलोसिटी निकालेगा तो गायकी बुरा तो नहीं मानेगी अगर इसको 34.2 into 10 to the power 10 कर दूं, तो दिस इज गोइंग टू 10 power 5। देखो 34 आप तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बट मैं अप्रोक्सीमेशन यूज करता हूं, इट विल बी समवेयर 5.8 के। आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज किया। यस सर यही है। क्योंकि मैंने ये देखा ना, तो √36 अमोदनी, √36 का आंसर क्या आना था? 6। तो मैंने उससे बेटे जब अप्रोक्सीमेशन मारी है मैंने उसके थोड़ा सा कम कर दिया। I could have written 5.85, 5.82, something like this. But anyway, you people write the moment, please use calculator. So otherwise this is going to become difficult. Is everyone clear? Any objection? Any idea which you have not learned? ईशान कैसे हो? ईशान कभी कभी बात किया कर यार। ईशान कोशिश कर अनम्यूट करने की। तो ये आंसर, अरे वाह मेरा आंसर कितना अच्छा है, 5.84 ईशान into 10 to the power 5. So that is the way you are going to solve it. Good. Hello गरिमा, बात करेगा मेरे से? Yes गरिमा। चल गरिमा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला बेटे। Electromagnetic radiation of wavelength
242 nanometer. Yes, Garima, do you understand? Do you remember? Nanometer is -9 meter. Is just sufficient to ionize the sodium atom. इसका मतलब क्या हुआ गरिमा? कोशिश करेगा, वरना इशिता you join me. That is, this light is just able to ionize the atom. That is, this E hc by lambda is equal to क्या होगा? Ionization energy. क्योंकि इस वक्त उसकी कोई kinetic energy नहीं होगी. So it's a easy question है ना? तो this is H 6.625 minus 34. The more number of times you just write it, 3 into 10 is to power 8 meter per second, and wavelength is going to be 242 into -9. Don't give me answer. I wish to give this as a homework because mathematical part you people can handle. Shall we move ahead? आगे चलें बच्चों. Any question? So it was an easy question. He is just asking you the ionization energy. So once you solve it, अच्छा एक चीज और, calculate the ionization energy in kilojoule per mole. एक गलती हो गई थी हमारे से. Say यहाँ पे क्या होगा आन्या अरोड़ा? This is going to be in per atom. ये per atom की आएगी. तो बेटा ये जो भी आपके पास एनर्जी आएगी, आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Let it be, this is E. This is going to be joule per atom होगी. आपको अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, कैसे करना होगा. This is, चलिए एक काम करते हैं, यहां से वैल्यू उठा लेते हैं. That will be easier. 8.21 into 10 raised to power minus 19. 8.21 into minus 19 joule क्या आ जाएगा? Per atom. See what is going to happen. 8.21 into minus 19 joule per एटम. आपको जूल को कन्वर्ट करना है किलो जूल में, तो किलो जूल हमें लेके आना है. 1 किलो जूल is equal to 10 to power 3 joule. Do you understand? That way the joule is going to cancel out. And now do you remember 6.022 10 to power 23 atoms is called as what? 1 mole. So this is atom. So what you will write? 6.022 into 10 raised to power 23 atom is equal to 1 mole. Atom and atom is going to cancel. Your answer will be having now what? It will be having kilojoule per mole. समझ आया बच्चों? Anybody having any objection? Please let me know. Otherwise I'm going to move ahead. So that was given in the question. He is asking ionization energy in kilojoule per mole. जब आप E is equal to hc by lambda करते हैं तो आपके पास एक एटम की आती है. अगर आप सिंपली यहाँ पे n डाल देंगे, where n is going to be 6.02 into 10 raised to power 23, this will be क्या होगा? जूल पर मोल होगा. अगर आप इसको किलोजूल में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको क्या करना होगा? 10 to power 3 से डिवाइड करना होगा. That is what I am going to do that. Clear? आगे जा सकते हैं. चलिए, चलो उत्कर्ष करते हैं बेटे ये क्वेश्चन मिलके. Yes उत्कर्ष, go through the question. उत्कर्ष ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बेटे. Electrons are emitted with zero velocity. उत्कर्ष देख पा रहा है? Yes, sir. A metal surface when it is exposed to radiation of wavelength this much. आपको पता है उत्कर्ष एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 10 की पावर -10. वेरी गुड. तो कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो पहले तो यही करते हैं, लेट इट बी 1 बेटे. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. Yes. आप सिंपली यहाँ पे नॉट लगा दीजिए. सी कितना है बेटे? आपसे सुनना चाहता हूँ. 3 into 10 to power 8 meter per second. Good. And what is wavelength? 680 into 10 to power -10. Very right. मीटर मीटर कट गया. Yes. आंसर दीजिए.
चल भी गाएगी जसलीन कौर? Yes, आंसर sir. क्यों नहीं? Sir, answer 4.41 into 10 raised to power 14. yes, sir. अनन्या चेक को बेटे एक बार देख भी लेते हैं। 4.4, अरे वाह आप तो बड़ा अच्छी आंसर निकाल लो। 4.4 इंटू 10^14 सेकेंड इनवर्स। प्रभाकर आप इसको बोल सकते हैं 10^14 गुड़िया, हर्ट्स भी बोल सकते हैं, दैट विल बी द सेम थिंग। ठीक प्रभाकर? Yes, sir. अगले भी चले वर्क फंक्शन पे। अनन्या मेरे से बात किया कर बेटे, राइट? यस अनन्या, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, इसका क्या मतलब हुआ प्रभाकर? कि kinetic energy 0 है। बहुत बढ़िया बोल रहा है गुड़िया, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वर्क फंक्शन। Work लेट इट बी। function. तो क्या जुगत लगाएगा बताए? सो दैट इज H into nu naught. वेरी राइट। एच तो फिक्स्ड वैल्यू है, लिख देते हैं 6.625 इंटू माइनस 34 joule second. और ये आपने 4.4 निकाला था ना पिछले पेज पे? Yes, sir. 4.4 4.4 इंटू 10^14 कितना आ रहा था? सेकंड इनवर्स। सेकंड कट गया बेटा, तो ये आपके पास रह गया 10^20। आंसर दे दीजिए कितना है? 4.4। साक्षी एंड साक्षी 29.15. एक मिनट 20 29.15. गुड जो 15. 29.22. चलो थोड़ा सा चला लेते हैं गुड़िया, है ना? अच्छा उसने उसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाया ना अनन्या प्रभाकर, तो उसने क्या कर दिया 2.99, ये -20 था गुड़िया, इंटू 10। सिर्फ वो 9.2 आ रहे हैं। ओ कोई फर्क नहीं पड़ता राजा, 2.99 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप ये कह रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अपने आप ही ना चुप आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना मेरे को परमिटेड है, कितनी अप्रोक्सीमेशन मेरे को परमिटेड नहीं है। राइट सन? चुप ये ठीक Yes, है? sir. साक्षी Yes, बात करेगा? साक्षी बात करेगा मेरे साथ? Yes, sir. चल डली इसको करते हैं साक्षी कुमारी। अगला क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम। पता है साक्षी, जब आप इसको कॉपी करेंगे ना अपनी नोटबुक में, तो कॉपी करना ही पड़ेगा क्योंकि तो एनसीईआरटी Yes, sir. चाहिए। तो जब क्वेश्चन कर लेगा ना, तो कुछ सेकंड बैठ के सोचेगा क्या दे रखा था, क्या मतलब था, कैसे निकाला, ठीक है जी, मैंने इससे क्या सीखा। जब आप ऐसे तकरीबन 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे, देन यू विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ मी सर। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज थॉट लगानी ज्यादा जरूरी है बेटे, सोचना ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनेशन में ऐसा हो, ऐसी प्रॉब्लम आए, कोई गारंटी नहीं लेते, बट हाँ कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं। चल साक्षी कुमारी मिलके करते हैं गुड़िया। से the work function of a cesium atom is 1.9, so that means उसने आपको क्या दिया है? उसने आपको दिया है h nu naught is 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और साक्षी आप ऐसा भी तो ले सकते हैं, आपको याद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 1.602 into -19 joules, right? So this is going to cancel out and you will be approximation देखिएगा, it is going to be 1.4 into 10⁻⁻19 जूल। साक्षी कुमारी चेक कर ले गुड़िया अप्रोक्सीमेशन, आप कैलकुलेटर कर लीजिए प्लीज। Yes, sir. So 3.5 approx. 1.4 3.0. 1.9 into 1.6। ओके 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 ओके, हाँ 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 मेरी गलती, दोबारा बोलो। 0.05. 3.04, थैंक यू, मेरी गलती, इंटू 10⁻⁻19। अब देखते हैं द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ए पार्ट इज इक्वल टू बेटे किसके बराबर होता है? hc/λ, है ना? सो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं 3.04 इंटू -19 जूल।
H साक्षी वैल्यू डाल दे 6.5 minus 34 joule second 3 10 to power 8 meter per second and the wavelength. Can we handle it, son? मत करो कैलकुलेशन, आंसर देख लेते हैं. So this is going to be 6.54 into -7. मत करो कैलकुलेशन, 6.54 into -7. कहीं पे और दिमाग लगाएंगे बेटे. ठीक, साक्षी कुमारी क्लियर? बिकॉज दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ द केमिस्ट्री पार्ट. चलिए बेटा आगे चलते हैं बी पार्ट के ऊपर. तो इसमें हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. अरे भाई E is equal to h nu नॉट पे आ जा, है ना. E आपको पता है, व्हाट इज E? अभी भी हमने पीछे निकाला था जो भी वैल्यू थी, क्या हम उसको कोट करके फ्रीक्वेंसी पे भी आ सकते हैं ना. यही तो रिलेशन चल रहा है. और सीधा अगर आप चाहते हैं गुड़िया तो आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा से भी आ सकते हैं. क्यों गुड़िया? यू कैन कम फ्रॉम दोनों साइड से आप निकल के आ सकते हैं. चल सकता हूं आगे? Yes, sir. गुड सर. आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट है ना, तो वो तो हम खुद भी कर सकते हैं. जो समझने वाला पार्ट है वो हम मिलके करते हैं. अब हम इस पोर्शन पे आ गए. यहाँ पे if the cesium element is irradiated, do you understand irradiated? डाला गया, wavelength of 500 nanometer. Calculate the kinetic energy and velocity of the ejected electron. Can you tell me what is the idea he is using? Now the wavelength is going to be how much, Vidya? 500 nanometer. He is asking h nu naught plus kinetic energy. Got it? h nu हम ये ले सकते हैं hc by lambda 500 नैनोमीटर. h nu naught तो अभी अभी आपने निकाल ली थी, कितनी निकाली थी? 3.04 into -15 जूल प्लस kinetic energy. तो बेटा मेरे को ये वैल्यू कैलकुलेट करके बता. 6.625 सीधा पुट कर देंगे, -34 into 10 to power 8 and this is going to be 500 nanometer -9 meter. Please use calculator. Everybody use calculator. ये क्या निकाल रहा है साक्षी? hc by lambda, that is the incident. to the power -20. एक बंदा बोले, साक्षी आप बोलिए अगर आपने कैलकुलेशन कर ली. वो मेरे को काफी अनुवंश आप बोल दीजिए. 3.97. 3 9. 9 आगे 7 7. into minus 9. 19 जूल. तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ किनेटिक एनर्जी का साक्षी 3.97 into -19. बेटा कैलकुलेशन पे चेक रखिएगा. into -19 that is joule, so that is going to be 0.93 into -19 joule. और अगर आप इसको ऐसा भी लिखे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनुवंश, is it clear? Let me check the value. 9.4 into -20 बिल्कुल सही जा रहा है. तो 3 ये बिल्कुल ठीक आ रहा है. तो हम लोगों ने क्या चीज निकाल रही है इस वक्त? यस देवांशी, काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कैलकुलेटेड. सर इसमें आपने अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाई? मतलब 4 की इक्वल बात सिखाऊंगा. अगर अभी सिखाई ना अनुवंश, वो भी मैंने सिखानी है. अभी तो आपको लॉग्स भी सिखाने हैं विद अप्रोक्सीमेशन. तो अभी थोड़े समय में सिखाऊंगा. वो दैट इज नॉट केमिस्ट्री, राइट? दैट इज जनरल स्मार्टनेस व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग. बट अनुवंश पक्का वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है बेटे. चले अनुवंश? यस सर. वो भी थोड़ी देर लगेगी बेटे. चल आगे आजा. अब निकालेंगे दोस्त क्या चीज? वेलोसिटी.
तो वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? किसके बराबर? तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी दोस्त? पिछले पेज पे आप ही ने तो मुझे बताया था 9.3 इंटू 10⁻20, है ना? यस। तो अब की बार मैं सीधा गायत्री दीदी वाला रिलेशन ले जाऊं। वेलोसिटी इज 2 इंटू 9.3 by this divided by 9.1 into -31. Don't get disheartened with this type of calculations. The time is going to come, right? आपका भी दिन आएगा, बट अभी आप सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मास्टरी करिए. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. 2.04 into 10 to the power 11. आप मुझे फाइनल आंसर दे रहे हैं? 11 नहीं हो सकता बेटे, क्योंकि 11 तो लाइट की स्पीड से भी ऊपर चल जाएगा ना. लाइट की स्पीड से ऊपर तो अग्रिम जा नहीं सकते हैं. नहीं सर, मैंने अंडर रूट नहीं किया. रूट नहीं खोला सर. ओके, रूट खोल दीजिए. ये कैलकुलेशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बस सीखने की भावना रखिए. वी विल लर्न. अनुवंश, ये सारी चीजें एक बार में थोड़ा सीख जाएगा. नहीं सर, आगे से थोड़ी थोड़ी समझ. पूरी सिखाऊंगा, बस अभी समय अभी ठहर के. वो स्टेजेस में आते हैं ना बेटे. सर इसका आंसर अप्रॉक्स √20 होएगा ना? 4.5 √20 10 to the 5. रेस्ट. Anyway, that's the mathematical part is yours. Understanding वाला part is going to be mine. हम आगे चले? Yes. चले आगे चला जाए? Yes. चलो भी अग्रिम बात करेगा मेरे से. Yes, Agrim. Yes sir. There's a question on the screen. We will not solve it. We will give you as a homework. But हाँ, हम इसको discuss कर जाएंगे without the mathematical part. Right, son? The question says, इसको duplicate कर देते हैं बेटे ताकि ये बचा रहे. The ejection of the photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt. अरे ये क्या आया? ये तो भी मैंने कराया नहीं. पढ़ लेते हैं. When the radiation 256.67 nanometer is used, calculate the work function. That means something is pending again. पेज नंबर 31 याद रखना कि हमारा ये पेंडिंग पड़ा है. ठीक, अभी इसके ऊपर वापस आते हैं. तो उससे पहले आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा. That concept is known as stopping potential. What is stopping potential? तो अगर मेरी बात सुन पा रहे हो? अगर मान लीजिए ये क्रिकेट की बॉल है. मान लीजिए दिस इज अ बुलेट. बुलेट वो मोटरसाइकिल वाला नहीं, बंदूक का बुलेट. अगर हम इसको अग्रिम एक्सेलरेट करना चाहते हैं, प्लीज डोंट सी द स्पेलिंग, तो आप क्या करेंगे? आप इसको किसी कैनन समझते हैं, तोप में रखेंगे या इसको उठा के किसी प्रकार से मार देंगे. सो दैट विल बी एक्सेलरेटेड. और जब वो एक्सेलरेट होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी, हम उससे क्या चीज निकाल सकते हैं बेटे? इट इज गोइंग टू बी हाफ mv स्क्वायर निकाल सकते हैं. राइट? ऐसे ही ना, प्लीज ध्यान से सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है. हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं. इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, अल्फा पार्टिकल होते हैं दोस्त. दीज आर चार्ज पार्टिकल. दीज कैन बी accelerated by applying voltage. हम इनको वोल्ट के रास्ते से, इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते से हम इसको बहुत तेज एक्सेलरेट कर लेते हैं. बताते हैं कैसे करते हैं. मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है. अगर हम इसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव है. हम ना इसको किसी ऐसी ट्यूब हाइपोथेटिकल में से पास करवा देंगे. यहाँ पे बेटे हम +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट, मे बी 1500 वोल्ट, मे बी अगर हम मिलियन वोल्ट लगा देंगे. तो व्हाट विल हैपन? अगर
इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अरे ये नेगेटिव है राजा, तो ये पॉजिटिव है, और 2 वोल्ट इसको ज्यादा खींचेगा, धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, 3 वोल्ट और ज्यादा खींचेगा, एंड सो ऑन। व्हाट इज हैपनिंग, द इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड। समझ आया? The electron or Yes. a charged particle can be accelerated by applying what? Voltage. तो अग्रिम अनम्यूटेड रहो मेरे पास। अग्रिम, kinetic energy of a charged particle. Remember, charged particle. न्यूट्रल के लिए ये काम आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज होना चाहिए। एक तो बेटे आपने रिलेशन अभी किया था हाफ एम वी स्क्वायर, एक नया रिलेशन डाला जा रहा है, आपने रिलेशन पक्का देखा है, बस उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर्मली, E into V. What is E? It is an electronic charge. Electron. It is always going to be beta fixed, minus 19 coulomb. What is the V? The potential difference, Voltage. जिसको इजी लैंग्वेज में वोल्टेज कह देते हैं, इनटू वोल्ट। और भूलना मत, इसकी डायमेंशन कूलम, इसकी डायमेंशन वोल्ट। बेटे 1 कूलम वोल्ट कितने के बराबर होगा? 1 जूल के बराबर। यहां से वो रिलेशन जन्म लेता है 1 जूल इज इक्वल टू 1.602 इंटू माइनस 19 कूलम। क्योंकि अगर आप इस पे मान लीजिए ये E रखेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे 1.602 माइनस 19 कूलम, ये तो पक्का ही है, और अगर आप 1 वोल्ट लगाएंगे तो कूलम वोल्ट बन जाएगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 1.602 इंटू माइनस 19 कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं दोस्त? इट इज गोइंग टू बी माइनस 19 जूल, राइट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ आ गया ना? 1 E इंटू 1 V, यहां से निकलता है। अब एक बात बता, राइट सर, एक बात बताइए कि अगर मैं इसको आपसे क्वेश्चन पूछूं, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन accelerated by a potential difference of 1 million volt, तो बेटे आंसर निकाल सकता है? काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. कैसे? E into V, Electron. Yes, E की sir. वैल्यू 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb into 10 to the power 6. तो दैट Sir, इज 1.602 into 10 to the power minus 13. जूल आ जाएगा। Yes, sir. कूलम वोल्ट किसके बराबर आता है? ये ऐसा क्वेश्चन हैंडल कर पाए? Yes, sir. आगे अनुवंश अनम्यूट हो जा। यस अनुवंश अनम्यूट हो जाओ। अनुवंश, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कौन सा पोटेंशियल बेटे, पढ़ के बता। स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भागा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कोई काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हम इसको ऑपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस दे, तो इसको स्टॉप भी तो किया जा सकता है। यस सर। कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें इलेक्ट्रॉन को लगाना पड़े कि इलेक्ट्रॉन एकदम रुक जाएगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपको लगाया जाएगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। The potential difference required to stop an electron is going to be known as stopping potential, and that will be numerically equal to what? Its kinetic energy. अरे यार इमेजिन कर, मैं तुम्हारे पास एक क्रिकेट की बॉल फेंक रहा हूं, तो आप क्रिकेट की बॉल को कैच करते हैं, तो आप क्रिकेट की बॉल को रोकने के लिए आप उतनी काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं ना जितनी क्रिकेट की बॉल की काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो वो क्रिकेट की बॉल रुकती है। समझ आया? वो आपकी तरफ आ रही है, आपने उसको स्टैंड स्टिल करना है, तो आपको उतनी एनर्जी उसको लगानी पड़ेगी, तभी तो उसकी एनर्जी खत्म होगी। अगर उसने आपको ज्यादा एनर्जी से पुश किया तो आप पीछे की तरफ आएंगे, अगर आपने उसकी तरफ ज्यादा एनर्जी लगा दी तो इलेक्ट्रॉन को बॉल ऑपोजिट दिशा में चल जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? सो हियर आई से stopping potential, it is the potential in volt
needed to stop a moving electron. Electron can be accelerated, electron can be stopped by voltage. It is numerically equal to kinetic energy of a moving electron. Kinetic energy किसके बराबर होती है दोस्त? E into V. तो that is equal to half mv square. मैं जितनी भी वोल्टेज लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, what is going to happen? इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, उसको बिल्कुल रोकने के लिए. Where E is going to be what? 1.602 into minus 19 coulomb, and V is going to be भैया potential difference in volt. Potential difference is बेटे voltage, nothing. Do you understand? इलेक्ट्रॉन sir. भागा जा रहा है, अगर उसको एक्सेलरेट करना है तो उसको पॉजिटिव वोल्टेज देगा, अगर उसको रोकना है तो आप उसको कितनी वोल्टेज देंगे सो दैट वो वहीं पे ही स्टॉप कर देगा. इलेक्ट्रॉन को रोकना है उसके लिए कितनी वोल्टेज आएगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू दिस रिलेशनशिप. यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन योर ओन लैंग्वेज. So जैसे इलेक्ट्रॉन कोई मूव कर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हमें जब उसको स्टॉप करना होगा तो हमें उसी एनर्जी से उसको अपोज करना पड़ेगा. उस एनर्जी को हम पोटेंशियल, हम वो एनर्जी Stopping किस होने- फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में दे रहे हैं. हम वो एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं? वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज की फॉर्म में दे रहे हैं. सो दैट कुछ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, हमने उसको ऑपोजिट चार्ज दे दिया तो वो वहीं पे ही रुक जाएगा. राइट सर, ये टॉपिक दोबारा लेके आऊंगा. अब अनम्यूट हुए हो तो मेरे साथ रहो, ये क्वेश्चन करते हैं. ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम चल रही है दोस्त. The ejection of photoelectron from silver metal in the photoelectric effect can be stopped by applying voltage of 0.3 volt. तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? Kinetic energy, right? Kinetic energy, बोलो, is going to be, बोलो, 1602 into 10 to the minus 90. 0.35 वोल्ट है. तो आप इसको कैसे निकालेंगे? That is going to be हाँ जी, E into V, E की वैल्यू 1.602 into 10 to the power minus 19. वोल्टेज बेटे इतना, कूलम वोल्ट जूल हो गया. मुझे आंसर दीजिए. Yes. ये हो गया 1.6 into 0.3, 0.54. I'm doing an approximation, sir. Minus 20. I may be wrong. Please check independently. The 5.6. 5.6 into 10 to the power minus 20. Minus 20. 5.6 into 10 raised to power. Okay. 0.08 ऐड करना था, मैंने 0.06 ऐड किया. Anyway, ये समझ आया बेटे? This is the kinetic energy. गायकी अनम्यूट हो जा. ये समझ Yes, आया sir. गुड़िया? Yes, sir. इतनी अगर आप काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना तो उसको रोकने के लिए देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? स्टॉप. Yes, डू sir. यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? ई के साथ, तो तेरे हाथ में क्या आ जाएगा? द काइनेटिक एनर्जी. Yes, sir. अब देख वो क्या कहता है. अब कहता है रेडिएशन ये है, तो ये मतलब वेवलेंथ उसके ऊपर फेंक रहा है, तो इसको क्या बोलेगा? इंसिडेंट. और पूछा Incident. क्या है उसने? वर्क फंक्शन. तो गुड़िया तेरे को ये रिलेशन किसी ने कराया था, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, Kinetic energy. और h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. Yes, sir. तो हमने इस वक्त वर्क फंक्शन निकालना है, तो बेटे हमने h न्यू नॉट निकालना है. सो Yes, sir. h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी. तो h न्यू, h की जगह पे hc बाय लैम्डा डाल दूं गुड़िया. Yes, sir. तो वैल्यूज बोलना जरा. 6.625 Into 10 raised to the power minus 34 into, yes, sir, speed of light. वेवलेंथ बोल. Sir, 256.7 into 10 raised to the power minus 9 nanometer. 9 मीटर. एंड Yes, sir. क्या करेगा? वो तो हमने निकाली हुई है, ये वाली किनेटिक एनर्जी.
5.6 into 10 raised to the power minus 20 joules. होमवर्क दे दूं? Yes, sir. ठीक, काहे की सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सो वी डोंट बिलीव इन रट्टा. व्हाट इज स्टॉपिंग Yes. पोटेंशियल? पढ़ के बताएगा. Yes, sir. It is the potential in volts needed to stop a moving electron. It is numerically equal to the kinetic. रुक. It is the potential in volts needed to stop a moving Stop a photoelectron. moving तो electron. बहन Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की तो काइनेटिक एनर्जी होगी. इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए तो तेरे को काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगा? Sir, half mv square करके. ना, मैंने तो तेरे को वोल्ट दी है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? ई से. E से. ई की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, उसको वोल्ट से Yes, कन्वर्ट sir. कर देगा. क्या आ जाएगी गुड़िया? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. Yes, समझ आया? sir. वोल्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. कैसे? Kinetic energy. जितनी भी वोल्ट तुमने लगाई है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे बहन? E से. ई की वैल्यू बोल दे. 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. वेरी गुड, वेरी गुड. भाई मुझे बताओ किसका माइक चल रहा है? रिया बात करेगा? यस रिया, whose mic is working? I would like to talk with you people. So I hope this is the same question we had done it. So I have left it blank. This is going to be as a homework for you people, right? सर एक डाउट. रिया बात दो पूछो बेटे. अनुज सर इसमें वोल्टेज 0.35 है. सर इससे एक्सेलरेट नहीं होगा वो तो, क्योंकि पॉजिटिव है. अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तुम पॉजिटिव लगाओगे तो वो उसकी तरफ खींचेगा. अगर नेगेटिव को नेगेटिव करेगा तो क्या हो जाएगा? वो रुकेगा नहीं. समझ आ रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऊपर से नेगेटिव पोटेंशियल सिर्फ इतना लगा कि ये दोनों एक दूसरे को, जितनी फोर्स से ये आ रहा है उतनी से अपोजिंग फोर्स आ जाएगी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अगर पॉजिटिव वोल्टेज लगाएगा तो क्या करेगा? वो भागेगा. समझ आया? पॉजिटिव से वो भागेगा और नेगेटिव से वो अट्रैक्ट होगा. मैं तुम्हारी तरफ कोई फोर्स कोई चीज फेंकी है तो वो मैंने तुम्हारी तरफ फेंकी है ना, अगर तुम भी उसकी ऑपोजिट तरफ से फोर्स लगाओगे तो वो पार्टिकल क्या करेगा? रुकेगा. ये देख अनुवंश, दिस इज नॉट केमिस्ट्री नाउ, राइट? दिस इज जस्ट इमेजिन. दिस इज अ पार्टिकल x मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड. आप यहाँ पे खड़े हैं, लेट इट बी. तो अगर आप यहां से फोर्स लगाएंगे तो लेट इट बी y फोर्स. अगर x इज इक्वल टू y होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो बन जाएगी. यस. अगर x is going to be greater than y तो पार्टिकल नेट किस तरफ जाएगा? और अगर x is less than y तो पार्टिकल किस तरफ निकल जाएगा? इस तरफ निकल जाएगा. सो अगर इलेक्ट्रॉन की कोई काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव. तो अगर आप पॉजिटिव लगाएंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. अगर आप नेगेटिव लगाएंगे तो रिपल्शन उसको क्या करेगी? कैंसल करने की कोशिश करेगी. तो इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेलरेटेड बाय पॉजिटिव ऑपोजिट वोल्टेज, इट कैन बी रिपेल्ड बाय द नेगेटिव वोल्टेज. वोल्टेज तो हमारे पास दोनों होती है ना दोस्त. इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव, राइट? आपके पास बैटरी वोल्टेज दोनों है मेरे बेटे. योर कंसेप्ट माइट इंक्रीज इन द फ्यूचर टाइम. सो आई वांट टू गिव Excuse me, दिस. sir. हाँ बोलो. सर वो पहले वाला एग्जांपल जो भी था सर, एक बार दोबारा समझाना. गाय की तो मेरे पास 10 यूनिट से भागती हुई आ रही है. अगर मेरी जीरो फोर्स है तो मैं पीछे गिर जाऊंगा. अगर तो 10 यूनिट से भाग के आ रही है, मैं भी तुम्हारे पास 10 यूनिट से भाग के आ रहा हूँ, हम जब टकराएंगे तो हमारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी? यस सर. दैट्स अ कॉन्सेप्ट. तो मेरे को मुक्का मार रही है, अगर मैं उतनी फोर्सेस को रेजिस्ट करूं तो दैट बॉक्स विल बी स्टॉप्ड. बट अगर आप ज्यादा एनर्जी से लगाएं तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा. दिस इज कमिंग फ्रॉम योर काइनेटिक एनर्जी. क्रिकेट के मैदान में भी आप ये काम करते हैं. यस सर. ये आपका होमवर्क रहेगा. आंसर इज प्रोवाइडेड बट आई विश यू पीपल डू दैट. चल भी करमजोत एक क्वेश्चन करते हैं यार. यस कर. यस सर. बोर्ड पे एक क्वेश्चन है. अ मेटल सरफेस, कोई जल्दी नहीं है दोस्त, समझने का है ना? A metal surface is exposed to solar radiation.
अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहा है ये? Yes, sir. That is exposed to certain radiation. ठीक है बच्चे, अब देख, the emitted electron have energy less than maximum value depending upon frequency. पढ़ बेटा चारों ऑप्शंस को और मेरे से डिस्कस कर आपको कौन सी सबसे सही लग रही है, और आंसर की चिंता करने के लिए आप अपनी एनालिसिस करिए। मैं आपको हिंट देता हूं, आइंस्टाइन ने बोला था h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy, और kinetic Yes. energy is equal to this. अब सोच के बता which is the best option? Sir, E. अनुवंश करना चाहूंगा। Sir, I think it is E. C. सी, चल बेटे बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं ना। The emitted electron have an energy less than maximum value of energy depending upon frequency. याद कर, कल मैं आपको हाइपोथेटिकल केस करवा रहा था, दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? अगर हम इसको लेट इट बी 12 से हिट करें तो काइनेटिक एनर्जी बेटे 10 - 12 नहीं हो जाएगी? Yes, sir. दिस इज स्टेटमेंट ए का मतलब है। सेकंड में देख, the emitted electron have energy less than maximum value depending upon intensity. अरे यार, इंटेंसिटी तो प्रभावित ही नहीं करती थी एनर्जी को। Yes, sir. Energy was a function of frequency. Energy was not a function of intensity in photoelectric effect. The emitted electron have zero energy. No, वो तो तब होगा कि अगर हम आपको बताते the incident energy is equal to what? The threshold energy. भी नहीं आ सकता है। The emitted electron have energy equal to energy of photons. कोई तुक नहीं बनती है, तो what seems to be sinks up the best option बेटा? The A. The emitted electron have energy less than maximum value of energy depending upon frequency. आप समझिए ना, अगर हमने आपको 10 यूनिट से पकड़ा हुआ था, तो अगर तो मैं 12 एनर्जी से हिट करूंगा तो 10 उसमें से जाएगी किसको निकालने के लिए, और बाकी की 2 बन जाएगी उसकी क्या बेटे? काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं 15 से Yes. हिट करूंगा 10 तो उसके निकालने में जाएगी दोस्त, 5 उसकी क्या बन जाएगी? द काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड Yes, सुनो, sir. so we are bringing the online test series maximum by the end of next week, या एक हफ्ता और आ जाएगा, तो आप लोग अपने घर के अंदर बैठ के आपकी इवैल्यूएशन भी शुरू हो जाएगी। आज 20 चल रही है, तो आप मान के चलिए मैक्सिमम अराउंड 5th of June के आसपास एक नया फीचर भी हो जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट करते हैं ना, तो मैं यहाँ से टेस्ट डालूंगा, आप अपने घर के अंदर बैठ के उसको पूरा करेंगे। सो दैट फीचर इज ऑल्सो कमिंग बेटा। ओके करम, बट अभी तो खैर Yes. मैं आपका टेस्ट डाल ही नहीं सकता हूं, क्योंकि जब तक मैं एक सब्सटेंशियल बैकग्राउंड नहीं बनाऊंगा। +1 में थोड़ा सा टेस्ट डिले होगा, होता ही है, क्योंकि अभी हम आपको सिखा रहे हैं। तो एनीवे सिंह साहब, ये क्वेश्चन को बेटे बैठ के ना समझेगा, फिर देखो ये और अच्छा समझ आएगा आपको। एम्स के अंदर और जेई के अंदर आपसे बात करूंगा, ठीक? कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको बोलते हैं हम असर्शन एंड रीजन। ओके सर, इसको याद नहीं करना चुप, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को, ठीक? वो कहेगा, एक असर्शन देगा, एक रीजन देगा, और वो आपको कहेगा अगर दोनों असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आपका आंसर ए आएगा। अगर assertion और reason are true but reason is not the correct explanation, तो आपका आंसर बी आएगा। समझ पा रहा है चुप? अगर assertion true है, reason false है, तो आपका आंसर सी आएगा। मतलब आपको तो वहां पे ABCD में टिक करना होगा ना। अगर दोनों false हैं बेटे, डी आएगा। अगर assertion is false, reason is true, ई आएगा। You should not remember that. You should check which is true, which is false, then you correlate with that. चुप सुन पा रहा है? Yes, sir. assertion है, assertion मतलब वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, threshold frequency is a characteristic of a metal, is it true or false? True.
वेरी राइट, तो बेटा इसके आगे ट्रू लिख देते हैं। ठीक, अब हमें देखना है रीजन को दो एंगल से। रीजन सही भी हो सकता है, रीजन गलत भी हो सकता है अपने आप में, और असर्शन का जो रीजन है वो आपस में कनेक्टेड भी हो सकता है। इसको असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is a maximum frequency required for the ejection of electron from the metal surface. क्या रीजन ट्रू है कि फॉल्स है? चुप। False. Very right. Why? The threshold Minimum. frequency is minimum frequency. जो समझ आया? Right? अन्य अरोड़ा Yes. भागकर समझ आया? This is false है। अब बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कौन सा सबसे सही लगता है? Assertion is true, reason is false. तो देखो ABCD में से seems to be best option to you. Everybody read it please. C. C, sir. Very good. तनवीर कौर, आपका आंसर क्या बनेगा डॉली? C. Do you understand? So that is the way the questions can also be asked from you. इसको मंथन बोलते हैं because you have to analyze which is true, which is false and so on. Shall we move ahead my dear friends? आगे चलें? चलो जी। हेलो आदित्य, बात करेगा? So आदित्य देखो हम कहाँ से अपनी दौड़ लगा के चल रहे हैं बेटे। हाँ आदित्य, आपने अनम्यूट किया था, बात करिए प्लीज। आदित्य, Yes, sir. हमने बड़ी थ्योरी की थी बेटे, कौन सी? बोहर्स थ्योरी। बोहर थ्योरी के बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी थी बट बोहर की कुछ नेगेटिव भी थी। अब हम उसकी नेगेटिव चीजों को पढ़ रहे हैं जिससे हम अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को सुधार पाए। बोहर ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था बेटा? Particle. पार्टिकल माना था। वो मैकेनिकल पैडल घूमना शुरू हो जाता था, वो डिफ्लेक्ट होते थे एंड सो ऑन। अब एक साइंटिस्ट आने वाले हैं जो कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी द वेव जो कि पहले वेव थी अब वो पार्टिकल निकल के आ चुकी है, पता ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तो Yes, हो sir. सकता है क्या इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर भी हो? दैट इज हम आगे जा रहे हैं एक रिलेशनशिप के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज विच डी ब्रोगली इक्वेशनशिप। इसको कॉपी नहीं करना बेटे, ये तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ये डी ब्रोगली है, द डी ब्रोगली। आदित्य थोड़े समय में मैं प्रूव करूंगा। आप अपने आप को पार्टिकल कहते हैं, मैं अपने आप को पार्टिकल कहता हूं। ये धरती, ये सूरज, ये चांद है ना, सबके साथ कोई ना कोई वेव कनेक्ट है। पिछली क्लास में कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ वेव की होती है, ऐसे कहा था थोड़ी देर इंतजार कर, हम फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की भी नहीं। राइट सर? तो यस अमोदिनी कम विद मी। Yes, son. So the idea that light, yes, Amodini, which was sir. considered to be wave, is also mechanical in nature. पता है ना, photoelectric effect और black body radiation ने prove कर दिया। In nature, Yes, sir. to the thought that electron, which is particle, can also be wave. Do you understand? मैं क्या तुम्हारे दिमाग में idea डाल रहा हूँ? Light, which was wave, has been proven to be a particle. Then why the electron which is particle can also be a wave? It may be true. That is, like light, can electron to have dual character? आप हमारी प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं? हम क्या चीज डिस्कवर करने जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बेटे? कि Yes, क्या sir. इलेक्ट्रॉन का जब अभी तक हमने पार्टिकल कैरेक्टर बोला है, क्या दैट कैन बी ऑल्सो वेव इन नेचर? नाउ ये डी ब्रोगली प्रूव करेगा, ये साइंटिस्ट का नाम है, यस दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। और ये आपके एटम का बिल्कुल ही आइडिया चेंज कर देगा, क्योंकि अभी तक आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के चले थे, वो चेंज कर देगा, उसको बिल्कुल ही एग्जैक्टली कन्वर्ट कर देगा। बढ़िया, लेट्स डू इट। आइंस्टाइन ने एक बहुत बड़ी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी तो लोग कह रहे थे कि इतना बड़ा जीनियस अपने सारे टैलेंट को खराब क्यों कर रहा है? बिकॉज नोबडी कुड अंडरस्टैंड दैट E एनर्जी is equal to mass of the substance into c light velocity square, ये दोनों बराबर आते हैं।
Nobody at that time could imagine that this is going to be true. This is going to be known as theory of relativity. In my opinion, you will not do this theory anywhere in your chemistry in the near future. In the near future मतलब मास्टर्स तक आप ये रिलेशनशिप नहीं करेंगे E is equal to mc square. बट बेटा मुझे लगता है कि शायद आपने ये सुनी होगी, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल but their total sum remains constant before and after any process. सुना हुआ है? That is theory of relativity में से निकली थी. एक मैक्स क्वांट भी आ चुके थे. मैक्स प्लैंक्स बोलते हैं E equal to hc by lambda. I hope you remember. हमने ये थ्योरी अभी भी की है. दोनों थ्योरीज के हमारे पास प्रूफ आने शुरू हो गए थे. तो डी ब्रोगली सर ने इनको उठा के इक्वेट कर दिया. mc square is equal to hc by lambda. Do you understand, Gudiya, equation 3? Yes, sir. C is going to cancel out. This C goes off. Square के साथ खत्म हो गया. तो आपके Yes, पास क्या रहेगा? mc. What is m? Mass of the particle. What is c? Light की speed is equal to h by lambda. Can you understand the fourth relationship? Yes, sir. I'm taking lambda on the left hand side. Lambda is equal to h by mc. Can you understand? c Yes, sir. किसकी होती है? फोटोन की स्पीड. लाइट की स्पीड को आप क्या लिखते हैं? 3 into 10 to the power 8. So this relationship is going to be for photon. That means every photon of light moving with wavelength lambda has certain mass associated with that. This was a new theory which was coming कि हर किसी चीज का हमारे पास मास और जो वेवलेंथ है दोनों हो सकता है. For all other moving particles, can you understand equation 6 बेटे? मैंने क्या किया है? स्पीड ऑफ लाइट की जगह पे मैंने क्या डाल दिया है तुली? Velocity. वेलोसिटी डाल दी है, क्योंकि लाइट की स्पीड से तो सिर्फ लाइट ही मूव कर सकती है. कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, विजिबल, माइक्रो, रेडियो वेव्स बाकी तो नहीं घूम सकती है. डू यू रिमेम्बर किसी जगह पे आप लोगों को शायद 9th और 10th में बताया जाता था कि m into v is known as linear momentum. Yes. मोमेंटम किसका होता है गुड़िया? मोमेंटम इज फॉर पार्टिकल्स. वेव का तो पार्टिकल होता नहीं है. और डी ब्रोगली सर हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू h by p. वेवलेंथ इज इक्वल टू h by p. दैट इज वेवलेंथ इज कौन सा करेक्टर है गुड़िया? द वेव करेक्टर. वेवलेंथ इज द वेव करेक्टर. Wave character है. Momentum is a particle character. दोनों are going to be related with each other. That is the de Broglie is telling us. De Broglie कहता है कि हर moving particle, that is every moving particle, you, me, electron, proton, neutron, cricket bus, आपकी रेलवे की जो ट्रेन चल रही है, anything which you can dream of, satellite, right, is moving, having mass m and velocity v, has some wavelength given by de Broglie relationship. Concept पूरे का पूरा हवा बन गया. That is ये जो इलेक्ट्रॉन है वेवलेंथ बन के ये उड़ गई. पहले इलेक्ट्रॉन कैसा आ रहा था? ऐसा आ रहा था. अब इलेक्ट्रॉन कैसा निकल गया? इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल गया. वेव फॉर्म आपने उसको एक्सटेंड कर दिया है. समझ रहा है? जैसे च्युइंगम गुड़िया इमेजिन कर. ऑल्दो इट्स अ क्रूड एग्जांपल बट यू कैन इमेजिन यू आर chewing a chewing gum. So chewing gum is a ball in your mouth. You just bring it out and you make it like a thread. वही chewing gum जो एक पार्टिकल थी अब वो क्या कर गई है? स्प्रेड आउट कर गई है. इमेजिन कर आंखें बंद करके इलेक्ट्रॉन, वो रहा इलेक्ट्रॉन और उसका भूत निकल गया है. दैट हैज नाउ एक बड़े एरिया के अंदर एक धागे के जैसा एक वेव के जैसा चला गया. The model which we were discussing is totally revolutionized. That is a de Broglie which is bringing that. De Broglie made a intuition, आप समझ सकते हैं, उसकी आइडिया से आया, that दिमाग से आया. If electron is also a wave, its formula should also be like that of photon wave. Photon समझता है क्या होता है? The light. अभी तक मैंने cosmic, gamma, x-rays उसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं डाला था. He saying भाई इलेक्ट्रॉन को भी कहाँ पे डालो? वेव बनाओ.
Wave lambda में photon is equal to h by p. What is p? The photon. लाइट के लिए तो कहता है इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो कोई मोमेंटम हो सकता है. So he is introducing, जैसे आप विजिबल, इंडिगो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव देखते हो, उसको क्या बोलता था? फोटोन वेव. ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी क्या बना दीजिए? द वेव बना दीजिए. राइट? वापस आते हैं इसके ऊपर. अभी सर हमें आपने लैम्डा इज इक्वल टू h बाय लीनियर मोमेंटम नहीं बोला था, हाँ, तो फिर वो फोटोन कैसे? अरे mc फोटोन के लिए ये ले. अच्छा आपने अच्छा समझ ठीक वाला. है. अभी बात करते हैं बेटिया, अभी तो काम ही करना होगा. तो सुन, रिलेशन लिख रहा हूं. लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mc. किसके लिए बहना? फोटोन के लिए. बाकी सबके लिए, मेरे और आपके लिए, क्रिकेट की बॉल के लिए, इट इज गोइंग टू बी m into v फॉर ऑल अदर मूविंग पार्टिकल. राइट? मुझे एक बात बता भैया, जो विजिबल रोशनी होती है वो कितने से कितने में होती है, कुछ याद है? 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. 750 नैनोमीटर. ठीक. इसमें से कोई एक फिगर उठा लो जो तुम्हें पसंद है, कोई भी. 450. 450. क्वेश्चन बनाने लगी है अभी ये लड़की. कैलकुलेट the mass of a photon of visible light having wavelength is equal to 450 nanometer. कौन आंसर देगा इसका? डी ब्रोगली. डी ब्रोगली क्या कहते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू फोटोन है ना, तो सी की स्पीड से मूव करेगा. तो बहन क्या थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दूं स्पीड को, एम Yes. ऊपर ले आऊं, Yes तो sir. दैट इज गोइंग टू बी एच लैम्डा सी. समझ आया गुड़िया? Yes sir. कैलकुलेशन मुझे नहीं आती, आप मेरी मदद करेंगे. आप कैलकुलेटर यूज करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 34 जूल सेकेंड. लैम्डा कितना बोला बहन तूने? 450. नैनोमीटर. समझ आ गया? Yes sir. लाइट की स्पीड कितनी होती है? कैलकुलेट करके बताओ. वेलकम इनटू द हायर क्लास. uh, 4.9. गारिमा चेक कर ले बेटिया. डोंट वरी. into 10 raised to power minus 19. चुप चेक करो. सना चेक करो. किलोग्राम. चुप चेक कर बेटे. डोंट वरी अबाउट द आंसर, जस्ट चेक इट. -33 नहीं आएगा? हो सकता है बेटे, मैंने चेक नहीं किया. मुझे भी लग रहा है -31 के करीब होना चाहिए. सर -33 यस आएगा. सर Yes sir, -33 है. minus 33 है. -33 kg. आप लोगों को ये बहुत कम लग रहा है, मेरे को भी बहुत कम लग रहा है, बट ये फिजिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है. कैन यू इमेजिन 4.3 into -33 किलोग्राम का पार्टिकल आपको हिट कर रहा है. राइट? ऑल्दो हमारी आंखें उसको देख नहीं पा रही, बट हमारे पास मेथडोलॉजी है दैट वी कैन से, वी कैन मेजर इट. दैट इज द आइडिया जो रदरफोर्ड जी दे रहे हैं. लाइट का क्या है? मास है. और इलेक्ट्रॉन की क्या है? वेवलेंथ है. दैट इज द आइडिया व्हिच इज कमिंग टू यू. चुप चल मेरे साथ बात करते हैं. ठीक बेटे? यस सर. चल एक मिनट चुप, अनम्यूट कर, गायकी को लेके आते हैं. ठीक गायकी? चुप अभी करता हूँ. Yes, sir. चल डली से बात करते हैं, आराम से बैठते हैं, कोई जल्दी नहीं. सुनो, अगर तो इसको रट्टा मारा तो you will not be able to visualize what he want to tell. These figures are just telling you इलेक्ट्रॉन हवा बन गई. इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठ के आप कहीं चले गए. इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. वेव ट्रेवल करता है ना. चल गायकी, Yes, sir.
क्या कि मुझे बता, आप वो शीट ऑफ पेपर देख सकते हैं जहां पे बोहर थ्योरी लिखी हुई है डॉली, मुझे देख के बता कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी बताई थी? 2.188 into 10 raised to the power 6 Z upon N meter per second. Let it be hydrogen atom, right sir? Yes, sir. ओके बहन, इलेक्ट्रॉन का मास देख के बता, मैं तो याद करने को बोलता हूँ नहीं, बट हाँ बेटा 9.1 into 10 raised to the power 31 minus 31 kg. 10 बार देखने के बाद वो हमारे मन में आ जाता है ना, इतना आ गया है Yes, ना, sir. लेट इट इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो वेलोसिटी n है, ये भी क्लियर है। एक कहीं पे मास्टर जी ने आपको बताया था रेडियस ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ -10 मीटर। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ गुड़िया तेरे पास, कि अगर मैं, एक सेकंड गुड़िया, मुझे अगले पेज पे लेके जाना है इसको, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। मान ले तेरे पास ये एटम है, तो इसका रेडियस माता कितना निकला है? 10 raised to the power minus 10 meters. और गुड़िया इसका डायमीटर कितना निकला है? 20 into raised to the power minus 10. समझता है ना? चले क्वेश्चन करते हैं, राइट? Yes, sir. Calculate the wavelength of an electron in first orbit of hydrogen atom and compare it with size of an atom and discuss what do you conclude, right? Welcome, आप एक बड़ी अच्छी जगह में जाने वाले हैं। अब आप अपनी क्लास 10th के सीधे रटे रटाए क्वेश्चन से आप अब सोचने वाली जगह पे जा चुके हैं। ठीक गुड़िया, करें बहन? Yes, sir. चल गुड़िया, मिलके करते हैं, कोई टेंशन तो है नहीं है। तो वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ के लिए कौन हमारी मदद करेंगे? डी ब्रोगली। Yes, sir. तो वेवलेंथ निकालना, एच की वैल्यू मैं भूल गया, मुझे बताओगे? 6.625 into 10 raised to the power minus 34 joules. तनवीर बात करेगा बेटे? तनवीर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into -31 kg. Understand Tanveer? Now what is going to be velocity? 2.1। गाय की कवर रख, अगर तनवीर ने बात नहीं किया तो you please be with me। Yes, तो sir. गाय की हाइड्रोजन एटम है गुड़िया, तो Z तेरा Yes, 1 आ sir. गया। Yes, फर्स्ट sir. ऑर्बिट बोला, तो बहना इसको 2.188 into 10 to the power 6 कह दूं। Yes, sir. Use calculator, everybody please use calculator, let me know the value। तनवीर आज माइक नहीं काम कर रहा। हाँ तनवीर अनम्यूटेड तो है बट बोला नहीं। Sir, answer 7.28. नहीं सर, एक मिनट, गलत आ रहा है, एक मिनट। हर कोई बंदा कैलकुलेशन करके बताए। सना तुम भी तैयार हो? 32 कितना बेटे? 3.32 into 10 to the power minus 7। मुझे ये आंसर सही लगा। एक और आ लेने दे। रोहित चेक करो। साक्षी minus, so minus Yes, sir. 3.32 into 10 raised to power minus 7. अरे ईशिता बोला 4 नहीं आएगा। 3.2 सेकंड नहीं, वो 3.32 और 3.4 में कपूर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज परफेक्टली फाइन, आप ऐसा आइडिया लगा देते हैं। तो हमने पहला काम कर लिया, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
Compare it with the size of an atom. Compare it with the size of an atom. Right? वापस चलते हैं. अरे एटम का साइज, हाँ जी, एटम का साइज आप लोगों ने कितना मुझे कहा था? यस कपूर, बात कर बेटिया. डायमीटर कितने के बराबर था डॉली? 2 into 10 to power -10 मीटर. -10 meter. You remember son, कहाँ से आया ये? Yes, sir. Now let me draw with the red color the wavelength. You remember what is a wavelength? Is a distance between two successive crescent troughs. कितना आया? Yes, sir. 3.32 into 3.32 into 10 raised to power -7. 3.32 into 10 to power -7 meter. So bete, can I write it 3.32 into, just hold on, I'm doing something, into 10 to power -10? Yes, sir. Why I'm doing it? Because this is, I'm comparing it with the size of the atom. Size, Atom. this is the wavelength आई है, और diameter आपका कितना आया था atom का? That is approximately 2 into 10 to power into 10 raised to power -10 meter. You understand? The wavelength is approximately 1.5 thousand times bigger. Compare कर रहा है? 3.3 Yes, into sir. 1.5 and Yes, 10 to the power 1500 times bigger than the size of the atom. You can imagine that what scientists should do now. This wavelength is found to be 3.3 into -7 meter. That is the wavelength of an electron. I'm here, Gudia. Compare it with the size Yes, of sir. an electron. The wavelength of electron is much bigger Bigger Then- than the size of an atom. atom. That is, which can be neglected? No. Which No. cannot be? Yes, Gudia. Neglected. Neglect. So one more experiment. Then we are going to correlate. Kapoor, you just let me अंदाजे से, अगर आपने गलत भी बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. Mass of a cricket ball. You just say something over here. Don't worry. But I can help you. This is 100 gram, approximated. Yes, right? sir. So that is Gudia 0.1 kg. ये कदम बता सकती है. So his father is a cricketer. कदम तेरे को पता है? Yes, sir. फास्टेस्ट क्रिकेट बॉल इस दुनिया में अभी तक किसी ने फेंकी है. मेरा ख्याल ये या तो ऑस्ट्रेलियन हो सकते हैं या पाकिस्तानी हो सकते हैं, है ना? तो वेलोसिटी कितनी होगी अंदाजे से? गलत भी हुआ तो चिंता मत करना. 168. आदित्य 162 किलोमीटर. वाओ, इवन आई डू नॉट नो. आई एम नॉट, मतलब मेरे को क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता है. सर 163. चलो 160 ले लेते हैं शोएब अख्तर की. 160 किलोमीटर पर आवर, है ना जी? अरे वाह यार, इवन आई डू नॉट नो इट. सो थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज. 160 तो मतलब अगर कोई इसके सामने आ गया तो उसका तो हैप्पी बर्थडे पक्का है. तो बच्चों 160 किलोमीटर को बेटे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो? वही वाला जो फॉर्मूला तुम करते थे पिछले साल, 5/18, है ना? तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. इशिता, मैं भूला नहीं हूँ, आप मेरे साथ चल रहे हो? Yes, sir. 40 किलोमीटर कट गया. मुझे आंसर दे, कैलकुलेटर यूज कर, चिंता मत कर. Every time we could not be discussing chemistry, so we are going beyond it. $44.4 44.44. चलो 44 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन की है ना? 44.4 ले लेते हैं. चलो भी, आपको ट्राई नहीं करना है. ऐसे शोएब अख्तर अगर हमारे से लड़ने आ गया तो क्या होगा, है ना? तो 44.4 कपूर मीटर पर सेकेंड.
राइट डॉली? क्वेश्चन बनाते हैं कपूर. Calculate the wavelength of a cricket ball moving with, Hanji Gudiya, velocity of 44 meter 44.4. and mass बिटिया 0.1 kg. समझ आ गया? Yes, sir. चल बेटे, कैलकुलेशन में मेरे को संभाल लेगा, केमिस्ट्री पार्ट में मैं संभाल लूंगा. लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. Yes, sir. तो डियर 6.625 Yes, minus sir. 34. I just ensure that I am in either in the SI or in the CGS. Then I don't worry about the units. But for your school exams, you should write the dimensions. What is mass, beta? 0.1 kg. 0.1 kg. 44.4 meter per second. Give me the values, son. This is 1.49 into 10 to the power minus 3. 34, sorry, minus 34. 5 ले लूं. जब मैं ऐसा डालता हूं ना अग्रिम, तो मैं अप्रॉक्स कर देता हूं. कपूर इतना आया? Yes, sir. कपूर अंदाजे से क्रिकेट बॉल विल नॉट बी मोर देन दैट, है ना? मेरी जितनी ये 5 उंगलियां हैं इससे बड़ी तो नहीं होती है, क्यों तुली? इससे बड़ी नहीं होती है. सो दिस इज 7 सेंटीमीटर. क्रिकेट बॉल का जो डायामीटर होगा गुड़िया, दैट इज ओनली गोइंग टू बी 7 सेंटीमीटर, और यू कैन से 7 सेंटीमीटर ही होगा. चलिए हम 7 ले लेते हैं, अब 10 ले लेते हैं, कोई बात नहीं. 7 सेंटीमीटर. तो ये जो आपका आया है, दिस वेवलेंथ इज 7 सेंटीमीटर की जगह पे, डू यू माइंड 7 into -2 मीटर गुड़िया? और जो Yes, sir. वेवलेंथ आई है 1.5 into -14 मीटर आई है. नाउ दिस वेवलेंथ, हाँ जी गुड़िया, इज वेरी वेरी स्मॉल with respect to cricket ball. Can we neglect it? Yes, you should Yes, neglect sir. it. But see, the problem which we are facing, this is an atom, and the wavelength associated with it is going to be very, very large. Can we neglect it? No. No. That is the idea that Mr. Broglie is there. That is lambda is equal to what? H by mv. आपकी दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है सना? Which is the smallest particle you have seen, you have observed till now? Yes, electron. You have not seen anything smaller than that. You understand? So अगर मैं velocity को constant भी मान लूं, तो wavelength is going to be inversely proportional to volume. For fixed mass, and therefore the smaller the mass, the more the wavelength, which cannot be neglected. That is, the de Broglie is giving you the idea that इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. राइट सन? The wavelength associated with electron cannot be neglected. Now, electron, अब जो आपका नया मॉडल आ रहा है, electron, I'm sorry, मैंने electron लिखना था चुप. Electron is a, yes son, particle as well as wave. wave. That is, electron has which character? Dual character. Like light कह दीजिए, wave कह दीजिए. That is Mr. de Broglie is telling you that you have to consider the electron particle as well as wave. एक आपको होमवर्क देने की कोशिश कर रहा हूं. We will discuss it out. अब आपके पास दो प्रकार की वेव्स हो जाती है. एक वेव आती है बेटे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक आती है बेटे डी ब्रोगली वेव, और आप इसको कह सकते हैं द मैटर वेव, जो मैटर के साथ एसोसिएटेड है। दोनों के अंदर डिफरेंसेस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, राइट? यस चुक, इट हैज कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिकल as well as magnetic. मैग्नेटिक फील्ड। वेयरएज अगर इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है, मैं आप कहीं जा रहे हैं, क्रिकेट की बॉल कहीं पे जा रहा है, इट हैज नो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. It travels with speed of light. That is constant. What is that constant? 3 into 10 3 raised to power 8. meter per second. Whereas this travels with much lesser speed v with respect to c. आपको पता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड ही आपको अभी आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, 2.188 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज बहुत कम है इसके मुकाबले। समझ पा रहे हो? इसकी जो वेवलेंथ आती है वो कैसे निकालता था? It's c by lambda. और E is इसकी equal जो to c by वेवलेंथ आती है कैसे आती है इसकी वेवलेंथ मैटर वेव की? ऐसा, राइट? इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सूर्य से जो रोशनी निकली थी, दिस कैन लीव इट्स सोर्स। समझ पा रहा है? जो सूर्य से रोशनी निकली थी वो कौन सी वेव थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट ये जो है दिस कैन नेवर लीव इट्स सोर्स। डू यू अंडरस्टैंड? जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहां जहां पे आप जाएंगे, जहां जहां पे मैं जाऊंगा, वहां वहां पे हमारी कौन सी वेव जाएगी? The electromagnetic wave is going to, the matter wave is going to go. So, yes, Harshini, would you like to talk with me? Yes, Sir? Harshini. हाँ? सर हमने पिछले पेज पे दो इक्वेशन लिखी थी वेव्स को डिनोट करने के लिए, तो हम उन दोनों इक्वेशंस को भी एक इवैल्यूएट कर सकते हैं। दोबारा बोल बेटे, मैं समझा नहीं। सर इन दोनों इक्वेशंस को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, c by v is equal to wavelength and h by mv is equal to wavelength। इक्वेट? यस सर। आप इक्वेट करेंगे? नो 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 नो, दिस इज एसोसिएटेड विद रेडियो वेव, दिस इज एसोसिएटेड विद रेड, ब्लू, कॉस्मिक, गामा, but this is associated with electron, me, you, cricket ball, बस। ये मैटर के साथ वेव है बेटे, और ये जो ओरिजिनल वेव थी उनके साथ वेव है, दोनों अंतर है। We are introducing now two types of waves, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक मैटर वेव। मैटर वेव किसके साथ एसोसिएटेड होगी? जिसका मास है। हालांकि मास तो पहले वाले का भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, बट हम दोनों में डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे हैं। दोनों को इक्वेट नहीं करेगा, ऐसे तो वो दोनों की स्पीड कोई बराबर थोड़ा होती है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो लाइट की स्पीड से भागता है। नो, नेवर। डू यू अंडरस्टैंड? ना, इक्वेट नहीं कर सकता। लेट एन इलेक्ट्रॉन, लेट, ये मैं पता नहीं क्या कह रहा था यार, बीच में क्वेश्चन आ गया तो मेरे दिमाग से स्किप कर गया। सॉरी, वो बीच में कुछ आइडिया है, पता आ जाएगा, पता नहीं मैं क्या कुछ कहने लगा था, वो बीच में तो क्वेश्चन आ गया। लेट एन इलेक्ट्रॉन, आई फॉरगॉट, मैं कुछ टॉपिक करवा रहा था, सो दैट वाज द आइडिया व्हिच वाज फ्लाइंग। कोई बात नहीं, कहीं घूमेगा नहीं, वो फाइल कहीं पे घूमी हुई है, वो मिल जाएगी।
So बेटे, that is the discovery. Stopping potential we did it. Stopping potential, you remember we did it. वो आ जाएगा पिछले वाला आइडिया. Now, yes उत्कर्ष, बात करेंगे आप. उत्कर्ष, थोड़े समय पहले हम बात कर रहे थे kinetic energy can be given by E into V. Yes. And that can be sun equal to half mv square also. V square is equal to 2 EV आ गया, यहां से निकाल लो. 2 EV into M. What is E उत्कर्ष? Yes. What is V? ये वाला V, इसको मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया है. What is this? अच्छा, वो क्वेश्चन याद आ गया. उत्कर्ष एक चीज याद रखना, वो क्वेश्चन याद आ गया. बस क्रिकेट की बॉल, बस ऐसा ही याद रखना. वो जो क्वेश्चन अभी पीछे कह रहा था ना, भी याद आ गया. What is M बेटे? Mass of charge particle. समझ आ गया? Yes sir. तो बेटा V, ये V वेलोसिटी है, इसको मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया है. वेलोसिटी को ऐसे लिख रहा हूं और वोल्टेज को ऐसे लिख रहा हूं. दिस इज कैसे लिख रहा हूं दोस्त? वेलोसिटी. और पूरे इसको क्या लिख रहा हूं? वोल्टेज. पोटेंशियल डिफरेंस. तो भाई क्या ये रिलेशन देखो समझ आया? द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल. क्यों चार्ज लिखा है? क्योंकि जिसके ऊपर चार्ज नहीं है उसको तुम इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक्सेलरेट नहीं कर सकते हो. ये करेक्ट है. ये बाद में आऊंगा, पहले मुझे क्वेश्चन याद आ गया जो मैं पीछे बात कर रहा हूं. लेट एन इलेक्ट्रॉन, अ टेनिस बॉल, अ बस, एक सिंपल बस, अ सैटेलाइट, artificial satellite are moving with the Utkarsh same speed. Then arrange them in increasing order of wavelength. उत्कर्ष, ठीक. तो उत्कर्ष, अभी भी आपको याद है हमने एक रिलेशनशिप की थी? Yes sir. बेटे H तो वैसे ही कांस्टेंट है और V इसको आपने क्या कह दिया है? सबकी सेम है. तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल हो गया उत्कर्ष? Mass. इसका मतलब क्या हुआ? Less the mass, more the wavelength. वेरी राइट. आपका स्कूल कौन सा था 10th तक? शिशु ने. अरे वाह, वो तो बहुत अच्छा मेहनत करते हैं ना. द लेसर द मास द मोर द वेवलेंथ. डू यू अंडरस्टैंड सन? Yes. तो बेटा इन चारों में से किसका मास सबसे ज्यादा है बताएंगे आप? Satellites. वेरी गुड. सैटेलाइट. उसके बाद बस. ये हम क्या कर रहे हैं? मास. उसके बाद बॉल और इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन. सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन. अब हम वेवलेंथ लिखते हैं बेटे. सैटेलाइट की वेवलेंथ क्या होगी? बहुत कम. हम इसको नेगलेक्ट करेंगे. बस की होगी बहुत कम, बट बॉल की होगी ज्यादा. और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बेटे क्या होगी? क्या ये समझ पा रहा? मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी और मेरी दुनिया में ये वेवलेंथ कोई मायने नहीं रखती है. आप लोगों ने थोड़े समय पहले जब एटम के साथ उसकी वेवलेंथ को कोरिलेट किया, वो एटम से अबाउट 1500 टाइम्स क्या गई थी उत्कर्ष? बिगर. बट उसी के बाद जब आपने एक क्रिकेट की बॉल के साथ उसको कंपेयर किया, दैट वाज वेरी वेरी स्मॉल थी. बट जब हम एटॉमिक वर्ड में जाते हैं, देन द डिस्कशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, यहाँ पे था. डू यू अंडरस्टैंड दिस? कैन वी मूव अहेड? पक्का? बस कंक्लूड करने वाले हैं. तो एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? साक्षी कुमारी मेरे से बात करेगा गुड़िया? Yes sir. यहाँ तक क्लियर है डॉली? Yes sir. नोट्स क्लास के बाद अभी हम आगे चलते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E into V half mv square. वी डिड इट. यही आपने पिछले पेज पे देखा ना. V वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 EV by m.
नाउ बेटे एडिशन कर रहा हूं पिछले मुकाबले. यू रिमेंबर डी ब्रोगली वेवलेंथ? Yes, sir. Now, Yes, sir. can I put velocity here? ये वाली velocity उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ बेटा, है ना? तो h by m under root में आ गया 2 EVm. What is E? Fixed. V is the potential difference, m is the mass. Do you understand that the relationship star? Can you understand? Yes, sir. What is m? The mass of the charged particle. What is E? Standard. What is V? The potential which. Remember, this discussion is valid only for Sakshi Kumari. Bolo. Charged particle. Because जो charged नहीं है हम उनको accelerate नहीं कर सकते हैं. डॉली, ये हमने अभी अभी पिछले पेज पे किया. तो अभी अभी आपको पता है, आपने ये भी तो कहा था EV is equal to kinetic energy बेटा. तो अगर मैं EV की जगह पे kinetic energy रख दूं, क्या आपको डबल स्टार समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. है ना? हमने EV की जगह पे क्या रख दिया गुड़िया? बिकॉज kinetic energy किसके बराबर होती है? EV. EV के. नाउ कैन यू अंडरस्टैंड? ये पिछले पेज से रिलेशनशिप निकाल के लाया हूं स्टार वाला, अभी भी किया आप लोगों ने. h by under root 2 m EV. ये what is V बेटा? Voltage by which the given charge particle is given acceleration. अब देख, इलेक्ट्रॉन के लिए h फिक्स्ड होगा, मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स होगा, E is the charge फिक्स होगा, तो सिर्फ वेरिएबल क्या होगा? वोल्टेज. Voltage. प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन फिक्स होता है, E तो फिक्स होता है, तो वेरिएबल क्या होगा डॉली? सिर्फ वोल्टेज. Voltage. What is this? Alpha particle. What is alpha particle son? हीलियम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल. तो उसके लिए भी मास फिक्स्ड होता है, E तो सबके लिए फिक्स होता है. Therefore, मैंने इनके लिए ये वैल्यूज पुट करके रिलेशन तैयार किए हैं. आपको टेंशन नहीं करनी है, आप ऐसा मत करिए कि हम आपको याद करवाने के लिए कह रहे हैं, बट हम आपको बता रहे हैं कि ये रिलेशन हमारे पास निकल सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. We will not go further here because अभी तो हम ये हाइजेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट से बात करेंगे. ये कुछ ऐसा कह गए क्योंकि हम आपके कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं जो अभी तक आप कॉन्सेप्ट किए हैं. इलेक्ट्रॉन इज फिजल्ड आउट, ये जनाब नए आ गए. ये कहेंगे कि ढूंढ लो इलेक्ट्रॉन को, जोर लगा लो, आप इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं पकड़ सकते हैं. वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू डू इट, यू कैन नेवर एवर सी एन इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली. एंड यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन साक्षी, राइट? सो अभी तक आपका एटम का पिक्चर कुछ ऐसा था. इधर रहा कहीं पे न्यूक्लियस, इस हिस्से में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन. नाउ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ब्रॉडन आउट लाइक अ क्लाउड. That is the atomic structure which is coming. Can you imagine? This is the matrix. So now a matrix. So welcome into the field of science. Few of you will be inspired. Few of you will be motivated, will be enthusiastic to go into this type of field. And that requires बहुत आसान है, बस कछुए के जैसे चलते चलो. क्यों? अभी तक इलेक्ट्रॉन क्या होता था अनुवंश? इलेक्ट्रॉन was localized. अरे ये देख वेव बन गई है, समझ पा रहा है? अपने आप को छोड़, देख इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है. यू अंडरस्टैंड? हम एटॉमिक मॉडल को टोटल चेंज करने वाले हैं. एंड डू यू अंडरस्टैंड ये सब कुछ कहां से निकल रहा है? ये कहां से निकल रहा है? तुम्हारे दिमाग से. अरे तुम्हारा दिमाग है ये. द ओनली डिफरेंस इज आप इस धरती पे मे बी अब से 15 साल 17 साल पहले आए थे और वो लोग अपना काम करके चले गए. नाउ इट इज योर ड्यूटी टू कंटिन्यू विद व्हाटएवर हैज बीन गिवन टू यू. द होल एटॉमिक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी चेंज्ड.
पहले ऐसा था, ये समझ पा रहा है? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स की जगह है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा बन जाएगा, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। These are the spots where electron can be there. कुछ हाइजेनबर्ग आपके कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं, या तो पोजीशन ले लो या मोमेंटम ले लो। The Heisenberg is going to change every concept you are having for an atom till now. थोड़ा बर्दाश्त करके, समय दे के आगे चलते हैं। इनसे दोस्ती करेंगे अगली क्लास में। तो अभी के लिए आपको हमने आज सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दिया है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये लो जी, इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया? वेव निकल गया। नाउ इलेक्ट्रॉन वेव एज वेल एज पार्टिकल। हाँ गुड़िया बोलो। सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ? मतलब वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों बोला है उसे? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में कभी पता ही नहीं रह सकता है। वी विल बी ऑलवेज अनसर्टन। आप जितनी मर्जी रिसर्च क्यों ना कर लें, ये मदर नेचर एक ब्लॉक बना के बैठी है। नो, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। अनसर्टेनिटी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम, वी विल बी ऑलवेज अनसर्टन। बट सी, दिस इज अनसर्टन, and out of that a new field is jumping, that is the quantum mechanics और quantum computing। आप में से जो मैथ्स लेके बैठे हैं उन्होंने सुना है quantum mechanics, the quantum computing, you know, quantum computing can help us in discovering new medicines. Did you hear me properly? आप लोगों ने तो कहा था कि मेडिसिन तो इंसान डिस्कवर करता है। How can this artificial intelligence be discovering? So this is the 22nd century जो आप हमें लेके जाने वाले। Not 21st, I'm calling it 22nd मेरे बच्चों। Welcome into the field of science. Now you are properly in the field of science. So next class हम एटम की धज्जियां उड़ा देंगे। हम एटम को एक बादल के रूप में लेके आएंगे। And you people will be bringing it. I will not be doing anything because we represent humanity. Right, son? So we stop here and see you in the next class, continued with which effect? Yes, करमजोत, कौन सा इफेक्ट कंटिन्यू होगा अगली क्लास में? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नमन यार थोड़ी बोली बात किया कर, बात ही नहीं करता है। नमन, right? Try to talk, son. Very easy. Just try to have a command of the system. Let's talk with us today. So we stop here and see you the day after tomorrow. Thank you, sir. ये मैं जानबूझ के पाठक ये लेके आया था। So this is going to be the knowledge you people are going to learn. Bye bye. See you again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thanks, sir. sir. अगर कोई कंफ्यूज नहीं हुआ तो that means he or she is not learning science. ठीक है? Okay बेटे, बाय बच्चों, see you again. Good luck.